architect, professional, businessman, हाउसवाइफ, चाइल्ड, सारे ड्रेस थोड़ा निकाल दे थोड़े समय के लिए, जस्ट 1 hour, और अब आई एम अ सोल, आई एम अ गॉडली स्टूडेंट, ये ड्रेस पहन ले। द हाईएस्ट यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लिया है हमने, बिकॉज सुप्रीम टीचर इज माई टीचर, सुप्रीम एनर्जी इज माई टीचर। ओके, ओम शांति। Okay, so recording start. So as we had done yesterday about royalty and reality. So royal, we love to be told, yeah, titled as very royal person. But as we had done yesterday, it is not just outside royalty, but inside royalty. And inside royalty, there are 15 points. Yesterday we did 1 point, और उसके अंतर्गत बहुत सारे और पॉइंट्स हैं. So now we'll understand. All of us want to be royal. Maybe all of us claim also we are very royal. Royal हम किसी से मांगते नहीं है, थोड़ा ड्रेस व्रेस में रॉयल. अब रॉयल ये तो आउटसाइड हुआ. जब आपको पता चलता है एक बहुत बड़ा सूट बूट, वेरी वेल ड्रेस्ड अप, very decent dressed, very good car, etc. And when you start staying with him for a day or two, and you come to know, अरे ये तो बहुत dishonest है, ये तो बड़ा मतलब what all thinking, very begging type है, very क्रोधी है, बहुत expectation है. अब आपको उसके वो ड्रेस फ्रेस रॉयल लगेंगे? जैसे ही आपको पता चला, पहले तो आपने क्लेम किया था उसको रॉयल. So Baba is making us royal from within. So yesterday we saw one symptom of royalty is reality. And the poll results were, I'm sure you all know what you had shared yesterday about yourself. इतना हम real है, right? I'll just show you the poll results जो आप लोगों ने share किया था. This was the poll result. अच्छा visible है या नहीं है? और otherwise percentage and all of them जो आपने बताया था. Is it right? 40% and the number, but we want more participation today. This was the poll result which yesterday we did it. So all of you, if you have not noted, you can note down your result कि आपने क्या क्या लिखा था. Accordingly we'll be moving forward today. ठीक है? I think so everyone must have noted down. So now we'll come to the next level of reality. Reality means the symptoms of reality, which was yesterday we did purity, honesty, acting, speaking and thinking, harmony within. तो बाबा ने जैसे बताया था कि कंप्लीट हार्मनी है, एक्टिंग से लेकर थिंकिंग तक, थिंकिंग से लेकर एक्टिंग तक नहीं. हम सोचते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इज कॉल्ड ऑनेस्टी, और फिर कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होते हैं ना उनसे हम डरते भी है, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो ऑन इट्स लाइक आई एम फियरिंग ऑनेस्टी, then why would I like honesty? So straightforward is not honesty. जहाँ मेरी एक्टिंग और स्पीकिंग और थिंकिंग कंप्लीट हार्मनी है,
what I am thinking, what I'm acting is what I'm thinking. Not what I'm thinking is what I'm acting. वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में आता है. मुझे आपको ये कहना है कि यू आर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू. दिस इज माई वर्ड्स. माई थॉट्स आर ऑल्सो द सेम. Because today we are very royal in the words and presentation. So therefore we just have to change one part, that is the thinking part. So harmony within the acting, speaking and thinking part. And this means authenticity. We are very authentic, we are transparent. And what, suppose the words which I use for speaking and thinking are not at all different. अब मैं इरिटेट हो रही हूँ और मैं बोल रही हूँ ओके हैव अ नाइस डे. तो अगर मुझे स्पीक ये करना है कि हैव अ नाइस डे, मेरे थिंकिंग भी हैव अ नाइस डे का आया. इतनी क्लैरिटी विद इन द सेल्फ. सो दिस इज प्योरिटी, ऑनेस्टी. So all of us today will just make a chart and write down chart में 15 points में, and then you only have to put the percentage. So you can write the percentage in the first point. First, purity, honesty. Work out your percentage. कितने percentage में आप उसको करते हो कि no differentiation. मुझे अगर आपको स्माइल देना है, I really feel happy about you coming here. This is the meaning of my smile. So my feelings and my speech are not different. This is called authenticity, honesty. Now the second part is so therefore harmony in the speaking, thinking and the acting part. No adulteration. Many times what we do कि उसके if I speak like that it will hurt them. So therefore I change the words which will hurt them. So I don't speak hurtful words, but I don't want to change my thoughts. So what is happening again, this is called adulteration. कि जहां आपने शब्दों में, if it's okay, it's very right and it's very good that you are changing your words. You want to hurt them. But have I changed my thoughts? So when I change the thoughts, what will happen? Because if I'm not change my thoughts, I will radiate what I'm holding on in the mind about that person. तो जो मैं अंदर फील कर रही हूँ वो रेडिएट हो रहा है. शब्द मेरे हैं कि ओके तुम बहुत अच्छी हो, तुम कर सकती हो, तुम समझदार हो, ये मेरे शब्द है. बट रेडिएटिंग, और मैंने होल्ड किया, क्या इतना बेसमझ, इतना भी उसको समझ में, इट्स सो फुलिश, इट्स सो इरिटेटिंग. मेरे अंदर ये रेडिएट होल्डिंग चल रहा है. ऐसे ऐसे उन्होंने किया, उन्होंने इतना मेरे साथ ऐसा किया. I have the whole list in my mind and the words are okay, fine, I love you, etc., etc. So what is that? So there is an adulteration and therefore there is a conflicting and confusing message the person is getting. एक words आप बोले जा रहे हो कि I love you, it's okay, forget it. You are saying them, चलो छोड़ो ना, क्या है. और अंदर आपका चल रहा है आपने ऐसा किया, आपको क्या, कैसे मैं माफ कर सकती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये रेडिएटिंग, ये एनर्जी रेडिएट हो रही है. तो इट्स लाइक सपोज
एक टेबल किसी को उठाना है, अब आप कहते हो हाँ उठाओ, एंड देन यू से नहीं 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 रखो, देन यू से नहीं नहीं उठाओ. नाउ व्हाट विल हैपन टू दैट पर्सन? ही विल बी कंफ्यूज्ड कि उठाओ या रखो, व्हाट इज द मैसेज? सो शब्दों में यू आर वेरी नाइस, आई लव यू, आई लाइक यू, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स, डेकोरेटेड वर्ड्स, और रेडिएशन एनर्जी लेवल पे ये चल रहा है. सो देर इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज, एंड देन यू से कि मैं तो कभी अच्छा ही बोलती हूँ, बट आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अच्छा बोल रहे हो, लेकिन वो फिर भी कंफ्यूज्ड है, because there is a conflicting message going to that person. इसलिए this is called adulteration. अब now second point, we all have to write adulteration. How much percentage do I give to myself? We all are going to be very honest with ourselves, because this is just our analysis. Today we are going to do an MRI of ourself, of the honesty. तो ये हो गया. I'm sure everyone must have done it. This is called adulteration. Okay, next. If please do let me know in the chat. You have to first make all the whole of this percentage. आप अपने आप बताते जाओ, because this is your analysis, and then at the end we'll let you know what to do. तीसरा है transparency. Now I am converting now inside whatever I am thinking is I convert it and present it outside. So therefore I have to take care very much, because मेरा thoughts ऐसा नहीं है ना, तो मुझे बाहर जो बोलना पड़ रहा है बहुत सोच के बोलना पड़ता है. I have to take care of the words I speak. So therefore transparency means I just convert my thoughts inside, and that is what I bring outside, and therefore I don't have to take care of what I'm speaking. And what will happen in this kind कि जहां मैं बहुत टेक केयर कर रही हूँ शब्दों का, क्योंकि आई नो व्हाट आई एम होल्डिंग, सो आई हैव टू, उसमें से मैं कुछ बताती हूँ, कुछ नहीं. तो हुआ क्या कि समवेयर वन डे इट विल कम आउट. इतना टेक केयर करते करते एक दिन तो कभी होगा ही कि वो निकल आएगा, और दैट इज द टाइम व्हेन यू जस्ट लूज कंट्रोल ऑफ योर स्पीच. और फिर हम कहते मैं इतने दिन चुप बैठी रही, मैं इतने दिन चुप बैठी रही. इतने दिन चुप क्या बैठी रही? आप बोल तो रहे थे कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेटेड वर्ड्स थे, तो फिर चुप क्या बैठना था? चुप आप ये बैठ रहे थे कि आप जो अंदर थे आप वो बता नहीं रहे थे, उसको हम डेफिनेशन दे रहे चुप बैठना. एंड देन यू लूज कंट्रोल ऑफ योर स्पीच. दिस इज व्हेन एवरीथिंग कम्स आउट. ट्रांसपेरेंसी. I just convert everything here and then bring it out. And जहां मुझे ध्यान नहीं रखना पड़ रहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, इतना पॉजिटिव कहाँ हमें ध्यान रखना पड़ता है. जैसे सपोज द होल ड्रेस, योर होल ड्रेस इज वेरी वाइट, कंप्लीटली स्पॉटलेस, बड़ा अच्छा प्रेस किया हुआ था. तो whenever you are with other people, when you need to go to the public or जहां आपको ड्रेस को आपको पता है you don't have to hide anything, लेकिन जहां कहीं स्पॉट हो गया, कुछ कीचड़ में लग गया, and now you are going before the person, तब क्या करोगे आप? थोड़ा उसको ध्यान रखना पड़ता है, आपको वो छिपाना पड़ता है. So when I have to take care of my words, I have to be so much attentive. इसका मतलब इनसाइड मेरा इतना नहीं है. Therefore you have to be attentive कि कहीं वो दिख ना जाए, वो कीचड़ वाला पार्ट है ना, दिख ना जाए. And then I say कि नहीं, मैं कितना ध्यान से बोलती थी, मैं कितना चुप रहती थी. This is called, because I have to be extra attentive.
This is not transparency. So transparency means converting inside and bringing outside. So this is, I'll take the questions, Purnima ji, in the end. So this is what is transparency. So now give the percentage you want in the transparency. So therefore, no hurting self. Now why do I take care? I don't want to hurt you. ठीक है, मैंने उसको हर्ट नहीं किया क्योंकि मैंने ऐसे बोला नहीं, बट इधर मैं कर रही हूँ. दिस ईयर देर इज ऑल टाइप्स ऑफ, जो भी कीचड़ हम सोच सकते हैं. समटाइम्स हम ये भी सोचते हैं इसको भी ना, इसका भी ऐसे नो टू द एक्सटेंट की रिवेंज का एक्सटेंट क्या होता है, एक बार इनके भी घर में ऐसा हो जाए, कोई ऐसा नो शरीर छोड़ दे, इस लेवल तक भी हम सोच लेते हैं. पर शब्द कहते हैं ओ आई रियली प्रे फॉर यू. जैसे सपोज दैट पर्सन, उसने आपका कुछ गलत की लोन वोन लिया, पैसा नहीं दिया, अब उसके घर में कुछ हो जाता है, बीमारी हो जाती है, क्या होता है, और नहीं तो हमको तो पता चलना चाहिए, लेट इट बी होना चाहिए. हम और देन व्हेन आई गो टू मीट हिम, ही इज माय बॉस, आई से ओ रियली आई प्रे फॉर यू, माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू, द होल फैमिली इज प्रेइंग फॉर यू. Converting this. So what I'm saying, I'm very happy sometimes, और इधर मैं हर्ट करी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, शब्दों में मेरा है. सो मे बी आई एम नॉट हर्टिंग आउटसाइड, बट जहां मैं बोल रही हूँ वहां तो हर्ट हो रहा है ना. सो देयरफॉर आई एम हर्टिंग माई सेल्फ इफ आई एम दिस काइंड ऑफ थॉट्स. ऐसे करेक्ट पर्सनालिटी कहेंगे. हरीश भाई एट द एंड विल टेक एवरीथिंग. नहीं भूल जाऊंगा मैं. स्प्लिट पर्सनालिटी हुआ ना, दोगलापंती हुई ना ये. सो यस, तो अभी विल हर्ट, सो वी आर हर्टिंग आवर सेल्फ. उसको तो हर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, शब्द बहुत अच्छे यूज करे, या हम हर्ट करते जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड हर्टिंग द सेल्फ. नाउ वी हैव टू सी फोर्थ में मैं कितना हर्ट कर रही हूँ अपने आप को. दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड हर्टिंग. जो व्यक्ति डिप्रेशन होता है, इट इज नथिंग बट दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, दिस काइंड ऑफ प्रोसेसिंग अंदर चल रही है. व्हेन द एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट और डिग्निटी होती है ना इनसाइड, here I need to have, how do I have that respect and dignity still? Then is the 8 pass. If you recall, हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्स में 8 पास किया था. Here we have to use the 8 pass. So there is the energy of respect and dignity, and therefore no hurting others. अगर मुझे नहीं भी बोलना है, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदर कोई है ही नहीं, so the way I will speak will never hurt the other person. So how much energy of respect and dignity I have to write that. And sixth is, it is sixth, be able to say no and put your words, because inside the energies of love and politeness. तो मेरा जो नो होगा ना, नहीं मुझे नहीं करना है, मुश्किल हो रहा है, तो वो नहीं भी एक हैवी वर्ड नहीं है, क्योंकि अंदर बहुत लव एंड पोलाइटनेस है. एंड देयरफॉर no false words and different thoughts, and that no cheating. तो कोई हर्टिंग नहीं, कोई चीटिंग नहीं. सो चीटिंग जब शब्द ऐसे होते एंड शब्द थॉट्स ऐसे होते हैं, दिस आर द नाउ द रिजल्ट. जहां ये इतना क्लियर कंसेप्ट होगा विद द सेल्फ, आई एम नेवर हर्टिंग माई सेल्फ, मतलब मेरे अंदर कोई भी ऐसा कचरा है ही नहीं, तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड फ्री फ्रॉम वेस्ट थॉट्स. ये जो मेरा चलते चलते चलता रहता है, क्यों चलता रहता है, जहां
ये जो इनसाइड कलेक्शन बहुत होगा, वहां वेस्ट थॉट्स बहुत होगा. दिस इज कॉल्ड कचरा, फ्री फ्रॉम वेस्ट थॉट्स and therefore always happy. The result would be honest to yourself, to be honest to others. So I'm completely honest with myself. इसलिए बाबा ने कहा कि रियलिटी की दूसरी निशानी, बाप दादा सच सुनाते रहते हैं, सच तो बीठो नच, सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेगी. ये जो खुशी क्यों नहीं होती है, अगर हम शब्दों में इतने स्वीट है, हमारे खुशी क्यों नहीं होगी? क्योंकि सच्चाई नहीं है. कभी खुशी कम, कभी खुशी ज्यादा, ऐसा नहीं होगा. दिन प्रतिदिन हर समय खुशी बढ़ती रहेगी. तो रियलिटी की दूसरी निशानी है सदा खुशी में नाचना, ऑलवेज हैप्पी. नैन चैन कहते हैं ना, तो रॉयल्टी का अर्थ है चित्त से भी, नैन चैन से भी सदा हर्षित, ऑलवेज हर्षित, चित्त से खुशी. सिर्फ हर्षित, बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित. हर्षित चित्त, हर्षित मीन्स हैप्पी, हैप्पी चित्त. चित्त मतलब अंदर, वो अंदर की थॉट, मन, और हर्षित मुख. कई बार ऐसे होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं. इसको हर्षित मुख, इसको टेम्पररी हर्षित मुख कहेंगे. हर्षित मुख है, सीम्स टू बी हैप्पी है, हर्षित चित्त नहीं है. चित्त हर्षित हो, अंदर खुशी हो, अंदरूनी खुशी जो होती है, इंटरनल हैप्पीनेस, ये तब होता है जब वो रियलिटी है. तो बाबा कहते चेक करो. तो प्योरिटी की रॉयल्टी, रियलिटी अर्थात इम्पेरिशेबल, अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो, ऑलवेज हर्षित हो. तो चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना. अभी हम सब चेक करें ना स्वयं को, बिकॉज इसमें जितना मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानती हूँ, नो वन एल्स स्टेइंग विथ मी 24 hours a day, वो भी मुझे इतने अच्छे से नहीं जान पाएगा, however close he may be to me. So this is reality. तो बाबा कहते ये है रियलिटी. तो रियलिटी अर्थात, तो रियलिटी का स्पीच पैटर्न कैसे होगा, वी जस्ट समराइज कि कन्वर्ट इट. जैसे ही कुछ गलत आता है, अब उसने मेरे साथ रॉन्ग किया है, क्लियरली इट सीम्स टू बी, इट इज वेरी ट्रू. मेरा इंटेंशन उसका था कि मैंने उसका, वन प्रोफेशनल ने मुझे बताया कि उसका 6 lakhs, दैट क्लाइंट का 6 lakhs का ड्यूज आया, एंड इट वाज टाइम पे करना था. और वो उसको फोन करो, एंड बहुत समय से 10 years से क्लाइंट है, बहुत समय से अच्छा चल रहा है रिलेशनशिप. और उनने सोचा कि उसको फोन करने के बजाय अब अभी मैं पे करता तो आई टेक फ्रॉम हिम, और उसने पे कर दिया. अब पे करने के बाद आफ्टर सम टाइम रिलेशनशिप खराब हो गई. और अब रिलेशनशिप खराब हो गई तो नाउ दैट क्लाइंट इज नॉट रेडी टू गिव दैट 6 लाख. नाउ दे सेइंग कि चलो ठीक है, व्हाटएवर, अंटिल नाउ व्हाटएवर वी हैव डन, मुझे अपना फीस दे दो, और अपना ये 6 lakhs, मैंने तो आपका ही काम किया ना. द क्लाइंट इज सेइंग कि किसने बोला आपको करने को. अब विजिबली क्या होगा, कभी सोचा था? मैंने तो इसको हेल्प किया था, एंड दिस इज द वे. जमाने में ना किसको हेल्प नहीं करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब यहाँ आई हैव टू चेंज. इट्स ट्रू कि उसने मिस्टेक की है,
you helped him in spite of it, उल्टा पड़ गया। आज वो अभी तक उसने पैसे दिए नहीं, अब मुझे कन्वर्ट करना इधर, अब क्या कन्वर्ट करें? अब इफ आई गो ऑन क्रिएटिंग द थॉट्स, वो तो बहुत खराब है, वो तो कभी नहीं देता है, लोगों को कभी नहीं हेल्प करना चाहिए, जमाना बड़ा खराब है, इट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। उसको तो मैं बोल नहीं सक रही हूँ, वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है। व्हाट आई एम डूइंग हियर? आई एम गोइंग ऑन हर्टिंग माई सेल्फ। बीमारी किसको आएगी? फिर हम कहते तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। कन्वर्ट दिस थॉट, इट्स ओके राइट। लेकिन अभी यहाँ बाबा का ज्ञान हम यूज करते हैं, कुछ ना कुछ मेरा एक अकाउंट होगा जो मुझसे कहलवा दिया, करवा दिया। अच्छा, सेकेंडली, द द फादर, द चार्टेड अकाउंटेंट, व्हेन ही वाज डूइंग दिस, he was told by the other family member कि please आप मत करो, we should not go to that extent, because little bit symptoms have been started speaking. She was not so open, she used to hide, so it's better not, let us not go forward. So there was a call, there was a teaching to you, but हम कभी कभी उस टीचिंग को नजरअंदाज करते हैं। ओके, अब वो भी गिल्ट कॉन्शियस भी नहीं, यर कन्वर्ट कि मेरा कोई अकाउंट था बिकॉज ऑफ विच दैट क्लाइंट इज नॉट गिविंग। हो सकता है कुछ उसने हमने किया हो, बट आई विल नाउ, आई वांट टू टेक दैट मनी, आई वांट टू मेक हिम रियलाइज कि दिस इज नॉट राइट। हम तो आपको हेल्प कर रहे हैं, लेट मी गिव द वाइब्रेशंस, यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ प्योर सोल, प्योर सोल। उसका अपना कार्मिक है, वो तो बन रहा है अगर बनेगा तो, लेकिन मेरा इधर तो हर्टिंग बंद हो जाए। तो यहां से हर्ट स्टॉप करे, कन्वर्ट इट, फिर अंडरस्टैंड देम, चेंज योर थॉट्स, क्रिएट इट, एंड देन स्पीक। बिफोर स्पीकिंग, दिस इज द एक्सरसाइज आई हैव टू डू। हम डायरेक्ट बोल देते हैं और फिर हम कहते हैं मेरा भाव ऐसा नहीं था। स्पीक करो, लेकिन डू दिस वे, बिकॉज देर आर, उसके नहीं तो फिर रिपेंटेंस हो जाती है और गिल्ट कॉन्शियस। नाउ एक गलती की, फिर अगर वो अंदर हर्ट करते रहे तो गिल्ट कॉन्शियस होते रहेंगे, दूसरी गलती। अच्छा, तो क्या हुआ? हर्ट होने से फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टेंशन बढ़ रहा है, गिल्ट कॉन्शियस होने से आई एम नॉट, मेरी हिम्मत हार जाती है, आई कांट बी करेजियस इनफ टू टेक अनदर गुड स्टेप, आई विल ऑलवेज डाउट माई सेल्फ, क्योंकि पिछली बार मिस्टेक कर दिया। तो योर फर्दर प्रोग्रेस स्टॉप्स। Here I have to convert it. Okay, हो गया, ठीक है, I'll pay attention. That soul is a sweet soul. I have to give the vibrations जो वो अच्छा करे, उसका दिल करे। जैसे जो सेंसिबल होगा, समझदार होगा, वो तो पैसा दे देगा, उसको समझदार बनाना है हमको, एंड देन स्पीक। तो दिस इज द स्पीच पैटर्न। इसलिए बाबा ने कहा कि सभी को मैं सुनाई तो दे ही रहा है ना, आवाज आ रही है ना, राइट? हाँ, तो बाबा ने इसलिए कहा, तो ये है रियलिटी, रॉयल्टी, रियलिटी। अच्छा, फिर अब जो इतना रियल होगा, ऑनेस्ट होगा, उसका उसके प्रति क्या होगा? प्यार होगा। नाउ रियलिटी, रॉयल्टी मतलब ऐसी रॉयल आत्मा बाबा को और सर्व परिवार को अति प्यारी होगी। तो रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? जो इतना ऑनेस्ट होता है, क्लीन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी स्पेशलिटी, उसका क्या स्पेशलिटी होगी? तो जो प्यारा होगा, ऑनेस्ट होगा, उसकी तरफ न चाहते हुए यू विल लव दैट पर्सन। हो जाता है ना? तो बाबा कहते हैं क्योंकि आजकल की रीति रसम प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे के प्रति न चाहते हुए भी उसके प्रति प्यार होगा, वो बहुत अच्छा लगने लगेगा।
तो जो प्यारे के तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित होंगे, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो, क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट होगा ना, लाइकली है, जो प्यारा होगा वो अटैचमेंट होगा। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा होगा। रियल और रॉयल प्यार मतलब अगर कोई बहुत ऑनेस्ट है, सब कुछ है, अट्रैक्शन होगा उसके प्रति, लेकिन टू बी डिटैच्ड, दिस इज कॉल्ड लविंग। वो लविंग नहीं होता है, वो अटैचमेंट हो जाता है। तो इसलिए तो रॉयल प्यार मीन्स न वह एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा और न उसके अटैचमेंट में, न दूसरा उसके अटैचमेंट में आएगा। दोनों बातें हैं, न वह अटैचमेंट में आएगा, ऑलवेज डिटैच्ड एंड लविंग। अब ये 12 पॉइंट भी अपना ग्रेड लिखते जाना है, एवरी पॉइंट में अपना परसेंटेज। ही विल नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय अदर्स एंड द वे इज, वो बहुत अच्छा है, द पर्सन विथ यू, इट कुड बी योर बॉस, इट कुड बी योर सबऑर्डिनेट, इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी क्लीन, वेरी, इज ऑल वर्चुअस, but not be impressed by him, but for that crediting Baba. Baba, you made such a beautiful soul. So I am not impressed by that person. Royal and real प्यार की निशानी। और दूसरा, he will not be just impressed by, but inspired by others. He will not be impressed by him, and न, बाबा ने कहा इसलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। अगर दूसरा मेरे अटैचमेंट में आ रहा है, इन अदर वर्ड्स ही इज जस्ट इम्प्रेस्ड बाय मी, इसका मतलब रियल रॉयल प्यार नहीं। बी इम्प्रेस्ड बट फाइनली इंस्पायर्ड। बीइंग जस्ट impressed, either I become impressed by others or others become impressed by me, is what I am very much impressed by him. मतलब you are making devotees. भगत लोग होते हैं ना, वो खाली प्रेस करते, मेरे भगवान ये है, ये है, ये है, लेकिन मैं उसकी तरह बनूं, वो इंस्पिरेशन नहीं है। बाबा is making a step ahead. Perfect. We have to become deity. We don't have to become devotee. Will not become devotee but a sensible soul, but a deity. जिसमें भी कोई भी अच्छाई है, लेकिन उसमें इम्प्रेस्ड के बाद इंस्पायर्ड होना कि हाँ ऐसा मुझे करना है। दिस इज कॉल्ड बीइंग इम्प्रेस्ड, दिस इज कॉल्ड बीइंग सेंसिबल। तो एम आई जस्ट इम्प्रेस्ड बाय गुड वर्च्यूज और एम आई इंस्पायर्ड ऑल्सो? नेक्स्ट पॉइंट है 12th पॉइंट विच यू हैव टू राइट। और उसके बाद तो बाबा कह रहे इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, खुश भी रहेगा, आकर्षित भी होगा, अट्रैक्टिव भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। ब्रह्मा बाबा, द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आता था, बाबा सिंपल वर्ड काम करते थे, लेकिन लोगों को लगता था कि इज वेरी प्योर एंजल। तो बाबा कह रहे हैं कि वह आकर्षित भी होगा, हर्षित भी होगा, लेकिन हद की आकर्षण करने वाला नहीं, लेकिन अति प्यारा और अति न्यारा। तो रियल और रॉयल प्यार की निशानी हुई अति प्यारा और अति न्यारा। बीइंग लव, लविंग एंड डिटैच्ड।
loving and detached, ये वाला. So fifth point which you have to note is loving, always detached and loving. Detached भी है but loving भी. इम्प्रेस्ड नहीं होना है. अगर कोई अच्छा है तो क्रेडिट बाबा को, और मैं अगर अच्छा हूं तो मेरे तक ही नहीं लोग सीमित रहे, लेकिन मैं इंस्पायर्ड, आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इंस्पिरेशन. ये नेक्स्ट है. अब उसके बाद अच्छा, और आगे चले. डर तो नहीं रहे हो? बड़े टफ बात है. दिस इज नॉट पॉसिबल. आजकल के जमाने में नहीं पॉसिबल है. ऑल आर स्टैनफोर्ड से भी आगे गॉडली स्टूडेंट है ना सभी. यस, राइट. सो आई मूव फॉरवर्ड. अच्छा, आगे है रॉयल्टी की विशेषता है उस आत्मा को रॉयल्टी की और विशेषता है. देखो, रॉयल है, रॉयल. उस आत्मा में कभी भी किसी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे. संस्कार ऑफ एक्सपेक्टेशन. जैसे रॉयल आत्मा है, वो बेग नहीं करेगी. हम रॉयल है, हम लोग ऐसे नहीं करते. तो फिजिकल हम सोच रहे बेगिंग करना, दिस इज नॉट रॉयल्टी. बट इंटरनल बेगिंग इज कॉल्ड इंटरनल बेगिंग. मीन्स क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न व भरपूर रहती है. दे आर कंप्लीट एंड दे आर फुल. तो एक भरपूरता बाहर की होती है, आउटसाइड फुल मीन्स एवरीथिंग यू हैव. और एक होती है अंदर की भरपूरता, दूसरी होती है मन की भरपूरता. तो जो मन से भरपूर रहता है ना, उसके पास स्थूल साधन या वस्तु नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वह कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा. एक्चुअली बाहर की कमी है सच्चाई से, या अंदर की कमी है? कितनी बार चीजें बहुत होती है, लेकिन मन ये नहीं है, वो नहीं है. इट्स लाइक बहुत कुछ है, लेकिन जो नहीं है उस पर मेरा फोकस है. नहीं है का दुख है का सुख नहीं लेने देता. सपोज 70% है, 30% नहीं है, फोकस कहाँ है? इवन इन अ फैमिली मेंबर, द पार्टनर और मे बी द फादर और द चाइल्ड, इतना कुछ अच्छा है, लेकिन क्या नहीं अच्छा है उसी का टेंशन है. नहीं है का. तो इसलिए बाबा कहते हैं एक होती है मन की भरपूरता, एक होती है स्थूल भरपूरता. जो मन से भरपूर रहता है ना, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वह कभी अपने में कमी महसूस नहीं करता है. मन भरपूर है. इसलिए जिसका मन भरपूर होगा ना, उसका पूरा फोकस कितना है मेरे पास उस पर जाएगा. और जिसका मन खाली होगा ना, उसका फोकस क्या मेरे पास नहीं है उस पर जाएगा. सो व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ वो सुख नहीं ले पा रहा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी थिंग्स, और यहाँ नहीं है पर वो सुख ले पा रहा है. एंड बिकॉज ही इज हैप्पी, ही कैन फोकस ऑन हाउ टू मेक द रेस्ट 30% फाइन, विच इज नॉट, क्योंकि इधर का सुख ले रहा है, इसका हैप्पीनेस है. तो माइंड कूल है, काम है, पीसफुल है, and therefore he can now work on the things which he needs to correct it and improve it, and therefore he will progress fast. तो बाबा ये कह रहे हैं जो मन तो कभी भी भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा. बहुत है हमारे पास, मतलब कई ऐसे हैं, बहुत कम है. पहले एक समय
2 साल पहले बहुत था, लाखों की मंथली कमाई थी। अभी कुछ बिजनेस का कारण जो भी चल रहा है ग्लोबल, तो ठीक है 20-30,000 हो रहा है मंथ का, लेकिन ऑलवेज वेरी हैप्पी। एंड आई आस्क्ड दैट सोल व्हाट इज, आई मीन डू यू डोंट यू फील कि कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब इस महीने का है, कल तक का है, अगले का नहीं है। बोला नहीं, बाबा बैठा है ना, बाबा बाबा ने मेरे को कितना किया। सी, उसने मेरे ये हेल्प किया, यहाँ हेल्प किया, यहाँ हेल्प किया। इतने सारे रियल जो बाबा के हेल्प है कि आई डिडंट नो हाउ, बच्चे की शादी थी, कैसे शादी कराया, कैसे क्या किया। मैं तो बाबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, always happy. Baba, you are really, I just don't know how to thank you. Gratitude. क्या होगा? Just see. आप, you are the boss. You have the power. You can give that the subordinate very much. But आपने थोड़ा सपोज नहीं दिया है, 70% दिया, 30% नहीं दिया, और वो जो सबॉर्डिनेट है वो कहता है तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे रियली बहुत दिया, यू रियली हेल्पफुल, या he will really praise you. What will happen to you? आपको लगता है ये 30% भी दे दूं? Will you not? और एक ही क्या दिया तुमने, इतना ये हालत मेरी कर दी। कभी मुझे सोचा नहीं कि मैं आपके साथ रहकर ये दिन देखूंगी। अगर उसका दिल भी कर रहा होता है ना, वो नहीं दे पाएगा। Why should we have that gratitude? भगवान बाबा आपने जो दिया बहुत दिया, इसलिए उसके मांगने के संस्कार नहीं होंगे। तो मन की भरपूरता, तो ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। ऑलवेज दे विल हैव दैट सॉन्ग। नहीं, चाहिए का वर्ड, चाहिए का मतलब हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, चाहिए वर्ड आता है। यू शुड डू दिस, दिस शुड हैपन। शुड मतलब हाथ को ऐसा किया, एक्सपेक्टेशन, रॉयल फॉर्म ऑफ बेगिंग। ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए। सीधे छोटे फॉर्म, फिजिकल की बात नहीं कर रही हूँ। इसको ऐसा करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाती रहेगी। उसके चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी, और मन से जो भरपूर होगा ना, उस वो गीत यही गाएगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार है। अच्छा, बेहद की सेवा प्रति सोचना। देखो, सेवा के लिए हम सोचते हैं कि ऐसा ऐसा हमको ये चीज चाहिए बाबा की सेवा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आज हमने ये पैकेज लिया, ये प्लेटफॉर्म बाबा की सेवा है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए भी डेस्परेशन नहीं है। बाबा आपको सेवा करानी है, यू विल गिव अस, दिस इज व्हाट वी नीड इट, बट आई एम नॉट आफ्टर इट। ये करना चाहिए, ये रॉयल मांगना है। अब नाउ मांगने में और क्या क्या आएगा? नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। उसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, मान चाहिए। यू शुड हैव जस्ट स्पोकन माय नेम कि मैंने किया इतना। आई माइट से ओ नो नो आई हैव नॉट डन एनीथिंग, ऊपर से हम बोलेंगे, बट अंदर क्या सोचता है, इतना भी नहीं, ही शुड हैव नॉट मेंशन्ड माय नेम। फिर हम क्या कहते हैं, एटलीस्ट थैंक यू तो बोले। मतलब एटलीस्ट में मेरा थैंक यू वर्ड है, मिनिमम में मेरा थैंक यू वर्ड की एक्सपेक्टेशन है, मैक्सिमम में यू जस्ट डोंट नो क्या चाहिए मुझे। ज्यादा से ज्यादा तो पता नहीं क्या चाहिए, कम से कम में थैंक यू चाहिए मुझे। कितनी जगह हम कर देते, एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट उसको इतना तो बोलना चाहिए, एटलीस्ट उसको पीछे मुड़ के देखना तो चाहिए, एटलीस्ट। दिस इज कॉल्ड मांगना। तो क्या क्या मांगने का आएगा? नाम चाहिए, यू शुड मेंशन माय नेम। शान चाहिए,
प्यार चाहिए। अरे थोड़ा प्यार से तो बोलो आप। अब एक जन क्रोध कर रहा है, हम क्या कहते, शांति से नहीं बोल सकते हो आप, शांति से तो बोलो। इज इट एन एक्सपेक्टेशन? एंड सी द वे आई एम टेलिंग, मैं इरिटेट होके कह रही हूं शांति से बोलो, तो वो क्रोध कर रहा है, मैं इरिटेट हो गई। what are we both exchanging? How can I, when I am giving the same, how can I expect that same? तो बाबा कह रहे हैं ये सब है हद की बातें। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होगा, नॉट अ स्लाइटेस्ट संस्कार नेचर ऑफ आस्किंग। तो नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट देखेंगे मांगने का एक्सपेक्टेशन। नो एक्सपेक्टेशन, नो कंप्लेन्स, बिकॉज ऑलवेज फुल इनसाइट। कंप्लेन्स का मतलब ही है वेकेंसी। इट इज लाइक फॉर इंडिविजुअल, सी व्हेन आई एम इन अ सेटअप, आई अंडरस्टैंड कि ये बातें है, एंड आई अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग इज फाइन कि इसको ऐसा करना चाहिए, इसको नहीं, he should not do this, he should have done this, but I am disturbed because he didn't do that, is called begging. As a leader, as a manager in an organization, as a chairman, there is a certain norms, वो तो है। बट अगर डिस्टर्बेंस है, मतलब आई एम डेस्परेशन that he should do this, can I help the person who is not able to do it? This is called, तो बाबा कहते हैं नो कंप्लेन्स। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये बदलना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए। You should have asked me at least. आपने अपना खा लिया, मुझे पूछा भी नहीं। एनी क्रोध मीन्स एक्सपेक्टेशन। जब मुझे उसने पूछा नहीं, was I angry? Was I hurt? This is called expectation. अगर एक्सपेक्टेशन नहीं होगा ना, यू वोंट फील इट। अगर आप वो बोल भी दोगे अरे तूने पूछा नहीं मुझे, बट अंदर आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, देयर इज नो एंगर। इसलिए बाबा कह रहे दिस। तो रॉयल आत्मा, तो समझा रॉयल्टी क्या है? ओके, चलो आगे बढ़े, डर तो नहीं गए? लास्ट, रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता का अनुभव कराएगा। रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन सत्यता का अनुभव कराएगा। वैसे भी रॉयल आत्मा को सभ्यता की देवी कहा जाएगा। देयर वुड बी, रॉयल सोल मीन्स अ वेरी कल्चर्ड सोल, डिसिप्लिन्ड सोल। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, हर कर्म में सभ्यता की सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। इन एवरी एक्शन देयर वुड बी, it will portray the cultured, the discipline in his truthfulness in every action. ऐसे नहीं मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो नहीं। कई बच्चे when they speak truth, हम कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है, एक बहुत स्टैंडर्ड है। सत्य इज नेवर कड़वा, truth is never bitter, otherwise truth will never be told. But whatever I want to speak, बोलना भी है, तो can I have the discipline, वो sweetness अंदर, आई एम टॉकिंग ट्रूथफुली और अंदर एंगर है, तो जो एनर्जी जाती है, जो मैसेज जाता है, क्या जाता है? यू वेरी ऑनेस्ट और अंदर बहुत क्रोध है। कई बच्चे कहते हैं, नाउ व्हाट इज दैट एग्जांपल, कि वैसे मुझे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। आई एम वेरी ऑनेस्ट, सो देयरफॉर आई कैन नॉट टॉलरेट डिसऑनेस्टी। इज दिस अ रॉयल्टी? एक ने, उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, दोनों में राइट कौन है?
बताओ कौन राइट है? इसलिए क्या होता है, कोई झूठ बोलता भी है और दूसरा क्रोध करता है तो उसका झूठ जाता नहीं है, क्योंकि उसको जैसे उसकी गलती दिख रही है कि ये झूठ बोल रहा है, उसको इसकी गलती दिख रही है कितना क्रोध कर रहा है। अब इसमें कोई कहे कि उसकी गलती इतनी बड़ी थी, मेरा क्रोध तो कुछ नहीं है, गलती है ना। एक इन ड्राइविंग, एक गलत करता है तो उसकी गलत को बताने के लिए आप खुद भी गलत होते हो। डू वी ड्राइव रॉन्ग in the wrong manner just to make him understand that you are driving wrongly? तो इसलिए बाबा कहते उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, दोनों में राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते। सत्यता को सिद्ध करने वाला ऑलवेज सभ्यता वाला होगा। ही वुड बी कल्चर्ड डिसिप्लिन टू प्रूव ट्रुथ, but in a cultured manner, in a disciplined manner, in a undisturbed manner, I prove the truth. इसलिए बाबा कहते हैं कई चतुराई करते हैं, कहीं स्वभाव आवाज ही ऐसा है। साइंस के साधनों से भी, मतलब मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, मेरा थोड़ा बोलने का जोर से आवाज है, तो कहते साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हो। अब ये ऑडियो है, उसको मुझे कम करना है तो है ना, वॉल्यूम कंट्रोल है। तो बाबा कहते हैं व्हेन साइंस के साधन, दीज ऑल एपेरेटस में वॉल्यूम कंट्रोल का एक स्विच होता है, यू कैन कंट्रोल देम, देन ये तो चेतन है, जड़ चीजें हम बताते तो उसमें भी वॉल्यूम कंट्रोल का एक मैकेनिज्म है। तो व्हाई कांट आई कंट्रोल माय वॉल्यूम ऑफ स्पीच व्हेन आई वांट टू टेल देम अदर्स? तो बाबा कह रहे हैं साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हो, तो साइलेंस के पावर से अपने आवाज को आवाज की वॉल्यूम को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो। इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और माइक अच्छा है जो आवाज कम ज्यादा कर सकते। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। being cultured while proving the truth. Therefore, अगर सभ्यता नहीं तो मैं कितना भी ट्रूथफुल हूं, लेकिन अगर कल्चर्ड नहीं तो देर इज नो ट्रूथ। बिकॉज क्या एनर्जी वो डिस्टर्बेंस की जाती है। दिस इज द मैसेज दैट पर्सन इज गेटिंग। तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, ऐसे नहीं अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती है। अगर अंदर है, हम कहते हैं मैं अंदर बहुत शांत हूं, बाहर आपको नहीं दिखाई देता है। अगर अंदर है तो बाहर जरूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। ट्रूथफुलनेस इज लाइक सन, नो वन कैन हाइड द सन। Therefore, truth need not be proved. Truth reveals itself. लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, न कोई कारण छिपा सकता, न कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। अगर सत्यता सिद्ध करते हो तो वह सिद्ध नहीं लेकिन जिद हो जाती है। When you tend to prove your truthfulness, it becomes stubbornness. इसलिए बाबा कहते हैं सत्यता की शक्ति को स्वतः सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्यता मीन्स इट विल रिवील इटसेल्फ। सत्यता को अगर सिद्ध करते तो वह सिद्ध जिद हो जाता है, इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सो की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी चेक करना, समझा? अच्छा, so now let me check, am I cultured? This is the 15th point, being cultured while proving the truth.
हाउ मच परसेंटेज डू आई गिव? एनालाइज योर सेल्फ, सब परसेंटेज लिखा। 1 मिनट साइलेंस करके हम सारा गो थ्रू करते हैं। ऑनेस्टली सारे परसेंटेज हमने लिखे होंगे। ये सारा अच्छी तरह से पढ़ के बैठ सोच के लिए लिखना पड़ेगा, ऐसे तो परसेंटेज लिख के अब फिर हम डिसाइड करते हैं। अपने आप को देखे। परसेंटेज मीन्स मेनी टाइम्स आई नो माई सेल्फ वेरी वेल, कितना परसेंटेज मैं करती हूँ, कितना मैं नहीं करती, और अपना परसेंटेज। एंड नाउ you must have written all the percentage. अब इसमें से this 15 points, hope everyone has written the last one also, given percentage for the last one. Okay, तो this percentage जो हमने किया है, percentage जो हमने किया है, this must have confused you. See, it's like we have understood the complete picture of honesty, of their royalty. It's our personality. There is nothing to get confused in that way. It's like just like X-ray, sorry MRI. X-ray में क्या होता है, ओवरऑल मिलता है, और MRI में हमें बहुत डिटेलिंग में पता चलता है। ये सब का अक्सर परसेंटेज इंग्लिश में हम, आप बाद में बोलना, पहले पूरा करने दो। तो अभी हमको अपना परसेंटेज निकालना है रॉयल्टी का। हाउ मच परसेंटेज डू आई गिव माई सेल्फ दैट आई एम रॉयल। जितने भी परसेंटेज आपने निकाला उसको डिवाइड करके अपना परसेंटेज। पूर्णिमा बहन इज सेइंग 80%, वेरी गुड। 70% रॉयल्टी का परसेंटेज वी वांट। रजत भाई 60%, वंडरफुल। ओके, 70%. So you have, I'm sure you must have given all the percentage and then the final percentage. We all are professionals or good business person. 50%, 80%, Kalpana ji saying 80%, okay. Yeah, this is the whole royalty. This 15 points comes under the royalty subject. All the 15 points come under royalty. I have to give my marks. Transparency, no adulteration, etc., etc. Let us give us marks to ourselves, because we are not cheating anyone, we are cheating ourselves. जो दर्द हो रहा है हमको हो रहा है, उनको किसी को कुछ नहीं हो रहा है। जो मैं ये डुप्लीकेट हो जाती हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उनको नहीं कुछ हो रहा है। 95%, very good. Manjari Ben is 90. So now I would like everyone giving that percentage. Every one of us, we are 48, we were 51. So everyone writing the percentage. This is the percentage. We have given ourselves percentage in the faith element also. We are giving percentage in the royalty element also. All, I would like the chats of everybody to come of the percentage. जो percentage आपको देना है आप दे सकते हो। Dr. Kiran 90%, very good. Vanita Ben 50%. Yes. 48 we want. अभी क्या करना है, एक बार हमारा सारे आ जाए। Hope everybody has done it. Arun bhai 48. Whoever wishes to participate, it is our own checking, because now we'll be seeing ourselves as a complete deity. फेथ में मुझे कितना वर्क करना है, रॉयल्टी में मुझे कितना वर्क करना है। जब परसेंटेज पता चल गया, अब मुझे पता चलेगा यस
अब मुझे इतना आगे वर्क करना है. So now that 30% I have to check कहाँ कहाँ मेरा जो 30% मेरा लूज हुआ है. फेथ में यू 50% जितना भी था, एवरीवन नोज दैट फेथ का एंड रॉयल्टी का. या एवरी पॉइंट्स को 15 पॉइंट्स को सेपरेटली यू हैव टू शेयर द परसेंटेज. ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी, एडल्टरेशन, I have to share because I have to completely be happy. Being royal means being happy. I can check मेरा happiness का index में problem कहाँ आ रहा है. At the end of the advanced class, we'll be making our graph. So as per your percentage, there would be a graph, and then we'll understand the points we have to work on. तो हमको पता चल गया आज हमको किस पे वर्क करना है. सभी को पता चल गया. जितना हम वर्क करेंगे ना, हमको अपना होमवर्क मिलेगा ना, हमको दूसरा क्या करे उस पर फोकस नहीं जाएगा. अगर अपना होमवर्क बहुत ज्यादा है, हम दूसरे के नोटबुक्स में पीप करेंगे. Our complaints for others will stop. This is called working on the self. Okay, so I want everybody, Arun bhai, please do a screenshot. Yeah, thank you. Can we please have the points once again quickly? Thank you. What you want? Okay, I'll just have a go through कर लेते हैं. The very first point was reality. First was reality, and reality words of speaking and thinking are not are the same. I am feeling irritated, but I am speaking. अगर मुझे वो जो स्पीक करना है वो ही मैं फील कर रही हूँ, बट ऑफकोर्स नॉट नेगेटिव. मैं कहूँगी स्ट्रेट फॉरवर्ड इज नॉट ट्रूथफुलनेस. लेट अस बी वेरी क्लियर. हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. दिस इज हर्टिंग अदर्स. व्हेन यू आर हर्टिंग यू कैनॉट बी ट्रूथफुल. We are saying, therefore we never said thinking, speaking and acting. We said acting, speaking and thinking. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, लेकिन इसलिए वो लास्ट का पॉइंट यूज करना है हमको. सत्यता और सभ्यता, कल्चर. अगर मुझे सत्य बताना भी है, लेकिन इन अ वेरी कल्चर्ड टोन, इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर. दिस इज कॉल्ड स्पीकिंग एंड थिंकिंग सेम. मैं अंदर सोच ही नहीं रही हूँ गुस्से वाला, तो मेरा निकलेगा कहाँ से. तो एक ये हुआ. सेकंड इज नो एडल्ट्रेशन, means radiating what you are holding on, changing words which will hurt them. So I am not speaking words which will hurt them, but I am not changing my thoughts here. No adulteration. Conflicting and confusing message, इसका ये रिजल्ट होता है. Transparency means I convert here inside and bring that outside. So I am it's like जो भी मेरे को अगर गलत होता भी है, इधर ही मैं कन्वर्ट कर देती हूँ. और ट्रांसपेरेंसी मीन्स आई एम नॉट नीड टू टेक केयर ऑफ माई वर्ड्स. जो मैं कहती हूँ मैं बहुत चुप रही, मैं चुप रही, आई वॉज नॉट ट्रांसपेरेंट. और फिर एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. बीइंग एबल टू से नो, no false words, no cheating, free from waste thoughts, always happy, being honest to the self. This is the method it has been told. And always detached and loving, not impressed by others but crediting Baba always.
लास्ट इज नो, सेकंड लास्ट इज नो एक्सपेक्टेशन, एंड देन मतलब ये उसको ऐसा करना चाहिए. कभी कभी हम सी इट इज नॉट वी आर अंडरस्टैंडिंग, बट इट इज नॉट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग. इसको ऐसा नहीं करना चाहिए और इसने ऐसा किया, ये हम समझेंगे जरूर, बट हम एक्सपेक्ट नहीं करते जाएंगे कि क्यों नहीं किया. हम डिस्टर्ब नहीं होते जाएंगे, हम उसको हेल्प करेंगे. और इफ नहीं हेल्प कर सकते देन आई जस्ट कीप क्वाइट. बट समझ जरूर जाएंगे ही शुड डू दिस, उसने नहीं किया है. एंड नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? सपोज ही इज अ सबऑर्डिनेट, सपोज वो मेड है, उसने नहीं साफ किया, ठीक है, क्यों नहीं किया, क्या बात है? मैं आपको पैसे दे रही हूँ, आपको समझ में नहीं आता है, आपको ये करना चाहिए. हम अपने ईगो को बूस्ट करते रहते, एंगर को बूस्ट करते रहते. एंड व्हाट इज हैपनिंग? वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर इगोइस्टिक. व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? इसलिए बाबा ने कहा मुझे पूछना चाहिए. एंड लास्ट इज बीइंग कल्चर. क्लियर है? Okay, so this is what is the whole exercise. The question, please. Yes. Without hurting anyone, how is it possible? आपकी एनर्जी बहुत लविंग एंड डिग्निटी की, रिस्पेक्ट की रहेगी ना. हाँ जी. आप नहीं भी बोलोगे ना, हाँ जी. उसको लोग फील नहीं करेंगे. Okay. हम ऐसे हार्शली नहीं बोलते, नहीं मैं नहीं आ सकती प्लीज, बट आई प्लीज रियली, आई एम रियली हम्बल हियर. Got your point. आपकी एनर्जी उसको धोखा देने की, उसको दुख देने की नहीं होती. तो आपके नहीं वर्ड भी एज इट इज ले सकते हैं, और नहीं तो आपका नो वर्ड बहुत मैग्नीफाई करके लेते हैं. देखा उसने इतना सा मैंने बोला नहीं बोल दिया, बहुत मैग्नीफाई करते. अच्छा, उसमें भी क्या होता है, 95% हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, 5% किसी का नेचर ही है रॉन्ग लेने का, उसका यू कैन नॉट डू एनीथिंग. Okay. किसी का संस्कार ही होता है, वो आपकी हर बात को गलत ही बताएगा, देन यू कैन नॉट हेल्प. 5% कंसेशन है, 5%, Okay. not 95%. Basically, your thought should be pure. Exactly. Thank you, Didi. It's like मैं कहूँ कि मुझे बहुत खुशी आप लोगों को देखकर, और मैं सोचती क्या है, कोई कर तो नहीं रहा है. ये नहीं, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं. ब्रह्मा कुमारीज में हमने यही देखा, यू डू योर बेस्ट, हम हेल्प करेंगे, विल डू एवरीथिंग फॉर यू. फिर आपकी अपनी एक रोल है ना इस पूरे ड्रामा में, तो आप अपने रोल के अकॉर्डिंग ही लेंगे. इट्स ओके, आई विल बी सेटिस्फाइड कि मैंने बेस्ट किया. फुल स्टॉप. Thank you, Didi. Clear? Yeah, absolutely. Thank you. Ji, I have a Yeah, we can share our power. I think so. The recording is taking place, so we'll be sharing you in the YouTube. If you wish, you can have that whole in the YouTube. और अगर ऐसे भी आपको जो PPT दे देंगे, हम दे देंगे उसमें आपके ग्रुप में. विल पोस्ट दैट PPT. Someone has asked for the PPT. We'll post it in the group. Not an issue. So now we have the percentage of faith, we have the percentage of royalty. कौन से गहने हो गए? See, now we have to become deities. अब देखो क्या क्या हो गया. ड्रेस सुंदर पहन लिया, ड्रेस तो पहन ही लिया सोल कॉन्शियस का, ठीक है. गहने, हार पहन लिया, फेथ का हार, ठीक है. रॉयल्टी के कंगन, पूरा सजा दे कि थोड़ा काफी है अभी, पूरा सजा दे आप सबको. अब in this whole advanced series it will be like decorating ourselves completely, because it is a godly school. You have opted for a godly school, मतलब God as a teacher, Baba as a teacher, supreme school.
ओके, तो अब हम क्वेश्चंस हैं दीदी। हाँ जी, टीना को है। आप अपना वो स्विच ऑफ कर दो। The Murli will be posted in the group. Yes. अरुण भाई बोलो। क्वेश्चन पूछना था और टीना को पूछना था, so they can ask now. Yeah. Yes, Tina Ben can tell. दीदी आप जो बोल रहे थे कि हमें जैसे हमें अपने